واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا شمار اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں ہوتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے اور ان کی زندگی کا سب سے معروف پہلو ان کا بے مثال صبر اور استقامت ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی قرآن مجید میں بھی بیان کی گئی ہے اور ان کی آزمائشیں اور ان کا صبر ہمیں ایک بڑی درس آموز کہانی فراہم کرتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ صبر اور استقامت کی عظیم مثال ہے۔ ان کی زندگی کی کہانی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائشوں اور ان پر صبر کا عظیم سبق موجود ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق ایک نیک خاندان سے تھا۔ ان کی زندگی آرام دہ اور خوشحال تھی۔ ان کے پاس بہت ساری زمین، مال و دولت اور اہل و عیال تھے۔ ان کی دولت کی مقدار اتنی زیادہ تھی کہ ان کے پاس بہت سے غلام اور خادم بھی تھے۔ باوجود اس کے حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں اللہ کی عبادت اور لوگوں کی مدد کی بہت بڑی محبت تھی۔ وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے، غریبوں اور یتیموں کا خیال رکھتے اور ہر موقع پر اپنے مال و دولت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے آزمائش۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے جو ان کے صبر و استقامت اور اللہ پر بھروسے کی نشانی ہے۔ یہ واقعہ ان کی آزمائشوں اور بیماری کے دوران پیش آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی زندگی میں تمام نعمتیں، مال و دولت اور خاندان سب کچھ چلا گیا۔ ان کی جسمانی حالت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ شدید بیماریوں میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے جسم پر زخم اور جلدی بیماریاں پھوٹ پڑیں اور ان کی حالت اتنی بدتر ہو گئی کہ لوگ ان سے دور ہو گئے۔ اس شدید بیماری کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے صبر کا مظاہرہ کیا۔ وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے سر بسجود رہے اور اپنی مشکلات اور درد کو اللہ کے سامنے پیش کیا۔ ان کے دوست اور رشتہ دار بھی ان کی حالت دیکھ کر ان سے دور ہو گئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا علاج کرنے کے بجائے انہیں مزید مشکلات کا سامنا کرنے دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کی: اللہ، مجھے تکلیف پہنچ چکی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اور صبر نے اللہ کو ان کی حالت کا علم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں شفا دینے کا وعدہ کیا۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کو دور کر دیا اور ان کی صحت بحال کر دی۔ ان کی زندگی میں خوشحالی واپس آئی اور انہیں دوبارہ مال و دولت، اہل و عیال مل گئے۔ یہ واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر و استقامت کی عظیم مثال ہے اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی آزمائشوں کا سامنا صبر اور استقامت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور اللہ کی مدد ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ صبر اور اللہ کی مدد۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بہت شدید ہو گئی اور ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ ان کی جسمانی حالت دیکھ کر لوگوں نے ان سے دوری اختیار کر لی۔ ان کے جسم پر زخم اور جلد کی بیماریاں پھیل گئیں اور وہ بہت تکلیف میں تھے۔ ان کی بیماری کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ کافی ہے کہ ان کا جسم باری حالت میں تھا اور وہ مکمل طور پر تنہا ہو گئے تھے۔ ان کی بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ اپنی گفتگو میں صبر اور ایمان کا مظاہرہ کیا۔ ان کی دعا میں شکایت کی بجائے اللہ کی مدد اور رحمت کا طلب کیا۔ انہوں نے کہا: میرے رب، مجھے بیماری نے گھیر لیا ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اور صبر نے اللہ کو ان کی حالت کا علم دیا اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت کو بحال کر دیا اور انہیں جسمانی طور پر مکمل شفا دی۔ اللہ نے ان کی زندگی میں خوشحالی اور مال و دولت بھی واپس عطا کیا اور ان کی آزمائش کا اختتام ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اور دوستوں کا واقعہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کے دوران ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کی بیماری کے سبب ان کے دوستوں نے ان سے ملاقات کرنا بند کر دیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی ہی تھی جو ان کی خدمت کرتی اور ان کے درد کا شریک ہوتی۔
ایک दिन हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की हालत इतनी खराब हुई कि वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थे और उनकी जिस्मानी हालत इंतहाई संगीन हो गई। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के बाज़ दोस्त जो पहले इनसे मिलने आया करते थे, ये समझने लगे कि शायद उनकी बीमारी अल्लाह की तरफ से अजाब है और उनकी हालत के पेश नज़र उनसे मिलने आना मुनासिब नहीं था। उनके दोस्तों ने ख्याल किया कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने किसी बड़े गुनाह की वजह से ये सज़ा भुगतनी शुरू की है, इसलिए वो उनसे दूर हो गए। एक दिन हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने यह देखा कि उनके शौहर की हालत मज़ीद ख़राब हो गई है और उसने अपने शौहर की हालत के बारे में दुआ करने का फैसला किया। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की बीवी ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह उनके शौहर को शिफा दे और उनकी मुश्किलात का खात्मा करे। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी की दुआ की कदर की और अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र किया। उनकी दुआ और सब्र ने अल्लाह ताला को उनकी हालत का इल्म दिया और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया। अल्लाह ताला ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की सेहत को बहाल कर दिया और उनकी बीमारी को दूर कर दिया। इस वाक़ये के बाद हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को दोबारा सेहत, खुशहाली और अहलो अयाल मिले। उनकी ज़िंदगी में दोबारा सुकून और खुशी आई और अल्लाह ने उनकी आज़माइश का खात्मा कर दिया। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम और शैतान का वाक़या। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी और आज़माइश के दौरान शैतान ने एक वक्त कोशिश की कि हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह की रज़ा से हटा दे। शैतान ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की सख्त हालत को देखते हुए उन्हें बहकाने की कोशिश की। शैतान ने सोचा कि अगर वो हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की बीमार हालत का फ़ायदा उठाए तो शायद वो अल्लाह के साथ अपनी वाबस्तगी को छोड़ देंगे। शैतान ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को वसवसे डालने की कोशिश की कि अल्लाह ने उन्हें सज़ा दी है और उनकी हालत से ज़ाहिर होता है कि अल्लाह उनसे नाराज़ है। इसने उन्हें यह ख्याल दिलाने की कोशिश की कि अगर अल्लाह वाकई रहीम है तो उन्हें ऐसी शदीद बीमारी में क्यों मुब्तला किया गया है। शैतान ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ तरीक़ों से आज़माइशों में डालने की कोशिश की ताकि वो अपनी बीमारी और मुश्किलात के बावजूद सब्र को तर्क कर दें और शिकायत करें। लेकिन हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने हर हाल में सब्र और यकीन का मुज़ाहरा किया। उन्होंने शैतान की वसवसों को रद्द कर दिया और अल्लाह पर अपने ईमान को कायम रखा। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने शैतान की तमाम कोशिशों का सामना सब्र और इस्तिकामत के साथ किया। उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपने अज़्म को मजबूत रखा और शैतान की तमाम तदबीरों को नाकाम बना दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की दुआ और सब्र को कबूल किया और उनकी आज़माइश का खात्मा किया। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की सेहत बहाल कर दी और अल्लाह ने उन्हें दोबारा खुशहाली, माल और दौलत और अहलो अयाल अता किए। दोबारा जवान होने का वाक़या। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी की शिद्दत के बाद अल्लाह ताला ने उनकी दुआओं और सब्र को कबूल किया। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपने सख्त हालात और बीमारी के बावजूद अल्लाह पर यकीन रखा और सब्र किया। उनकी बेपनाह आज़माइशों के बाद अल्लाह ने उनकी हालत को बेहतर करने का वादा किया और उन्हें शिफा देने का फैसला किया। एक दिन अल्लाह ताला ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक ख़ास दरख्त की टहनी को लेकर अपनी जिस्मानी हालत पर लगा लें। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया और दरख्त की टहनी को अपनी जिस्मानी हालत पर लगाया। अल्लाह की कुदरत के तहत हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की बीमारी दूर हो गई और उनका जिस्म मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। इसके अलावा अल्लाह ताला ने हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम को दोबारा जवान बना दिया और उनकी सेहत और जवानी वापस अता की। उनकी जिस्मानी हालत पहले की तरह खूबसूरत और सेहतमंद हो गई। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की ये शिफा और दोबारा जवान होना अल्लाह ताला की रहमत और फजल की अलामत था। अल्लाह ने उनकी तमाम मुश्किलात का खात्मा किया और उनकी जिंदगी को खुशहाली और सुकून से भर दिया। उन्हें दोबारा माल और दौलत और अहलो अयाल मिले और उनकी जिंदगी में खुशियों की वापसी हुई। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की आज़माइशें इंसान के सब्र और ईमान की हकीकत को ज़ाहिर करने के लिए होती है। हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने का दर्स देती है।
अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सब्र की अज़मत को कुरान मजीद में बयान किया है ताकि हम उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करें और अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलात को सब्र व यकीन के साथ बर्दाश्त करें। अक़वाल और नसीहतें। सब्र की अहमियत। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र का मुज़ाहरा करते हुए कहा, ए मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह पर यकीन। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कुदरत और हिकमत पर यकीन रखते हुए कहा कि अल्लाह सबसे बेहतर है और हर चीज पर कादिर है। अल्लाह की रहमत पर एतमाद। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ और सब्र की मिसाल हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की रहमत कभी भी देर नहीं करती। अल्लाह सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। ये हकीकत हमें दिखाती है कि अल्लाह की रहमत और मदद हमेशा करीब होती है और हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। आजमाइशों का सामना। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में आजमाइशों का सामना करने की मिसाल हमें ये सिखाती है कि आजमाइशें हमारे ईमान को मजबूत करने और अल्लाह के करीब जाने का जरिया बन सकती है। उनकी जिंदगी की कहानी हमें बताती है कि आजमाइशों के बावजूद हमें अल्लाह के अहकाम पर कायम रहना चाहिए और सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करना चाहिए। शुक्रगुजारी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीमारी के दौरान भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र किया। उनकी जिंदगी हमें यह नसीहत करती है कि हमें हर हालत में अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों।